Yes, ma'am. Okay. Why all are absent yesterday? Why all were absent yesterday? कल क्यों absent थे? Because this particular lab session depend upon the previous lecture. First of all, I have to you have to learn the fifth law. After that, we can perform the practical of fifth law. But आप थे नहीं, that's why. आप थे नहीं, that's why आपका जो फिफ्थ फ्लॉप है वो नहीं हुआ है. सो अभी मैं उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को नहीं करवा रही हूँ. आपका जो यूनिट नंबर 3 है रिगार्डिंग फिफ्थ फ्लॉप वही स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू लर्न दिस फिफ्थ फ्लॉप. आफ्टर दैट वी कैन मीन्स परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ फिफ्थ फ्लॉप. एम आई ऑडिबल? हेलो? એલા નેટ જતું રહ્યું. સ્ટુડન્ટને ભરવી નથી કે મેડમને ભરવું નથી? હા, પેલામાંથી જ કરવું પડશે. हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Actually, first of all, we have to study the fifth law. After that, we can do the practical of fifth law. That's why yesterday वो मुझे करवाना था, but आप सारे absent थे, वो नहीं हो पाया. That's why first of all आज मैं यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ रिगार्डिंग फिफ्थ लॉ. उसके बाद लैब का प्रैक्टिकल होगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी वो करवाने का कोई मतलब नहीं. ठीक है? एंड हाउ वाज योर एग्जाम? कैसा था? एंड क्रिश को मैंने एक मैसेज भी फॉरवर्ड करने को बोला था. देयर इज वन प्रॉब्लम इन आंसर की आपकी करेक्ट है जो मैंने अपलोड की है, बट जो फॉर्म है उसमें ऑप्शन सिलेक्ट रॉन्ग हुआ था. दैट्स सबके मार्क्स वो अपडेट हुए हैं, 2 मार्क्स या किसी के मतलब अपडेट जिसके भी होने थे उसके स्टूडेंट उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ही अपडेट हुए हैं 2 मार्क्स. लेकिन वो अभी मैं अपडेट नहीं करूँगी बिकॉज लॉट्स ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग फीस. वो फीस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. दैट्स वाई अभी मैं अपडेट नहीं करूँगी. जैसे वो सोल्व हो जाएगा मैं आपके मार्क्स से वो अपडेट कर दूँगी. ठीक है? और एनी अदर डाउट रिगार्डिंग एग्जाम? हेलो? ओके. No, ma'am. Okay, so I just start our unit number 3. अराउंड 30 मिनट्स में लूँगी, 30 या 45, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी बिकॉज लैब का सेशन नॉर्मली हम 1 आवर का ही रखते हैं. दैट्स वाई. ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so now visitor fundamental module number 3. It is a sequential circuit and system. Yes, and more one thing like आपका जो असाइनमेंट है उसकी मैंने ड्यू डेट है वो चेंज की हुई है, अगर आपने देखा है तो. उसमें क्या है Yes, due date ma'am, आप Monday देख को. लेना. यस, मंडे को सबमिट करना है. यू टू सबमिट टिल मंडे. ओके, किसी का अगर बिफोर भी हो जाता है सो यू कैन अपलोड, अदरवाइज आपको मंडे तक सबमिट करना है. एंड ये लास्ट डेट है, इसके बाद इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा. ठीक है? मंडे सबको सबमिट करना है असाइनमेंट नंबर 2. Okay, now digital fundamental module number 3. It is sequential circuit and system. Okay, so normally we have studied the combinational circuit in our unit number 2. Okay, which are the combinational circuit? कौन बताएगा मुझे? कौन कौन सी combinational circuit हमने पढ़ी है? Multiplexer, decoder, Multiplexer, उसके बाद decoder, decoder, encoder, yes, decoder, encoder, multiplexer, demultiplexer, or after that like code conversion, like BCD to gray, gray to binary, something, all things covered in combinational circuit. Okay, but
if you consider the sequential circuit, so what is the difference between sequential and combinational? Actually sequential circuit having some memory units, means वो क्या करेगा, previous जो आपको output है ना उसको याद रखेगा, remember रखेगा वो। जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट है उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, आप जो भी इनपुट देते हैं सेम वो आपको आउटपुट में मिलता। बट इन सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट अगेन गिवन in the input considering the feedback signal. So your output depend upon previous output as well as present input also, and this previous output stored in one memory unit in sequential circuit, and this particular memory unit it is called as a sequential circuit. Okay, sequential circuit consists of combinational portion as well as memory unit, and this memory unit it is a flip-flop, and your flip-flop store only one bit of information. One bit का मतलब क्या, either 0 and 1, because if it is a digital signal so we can store 0 or 1. So sequential circuit, difference between sequential and combinational circuit. Combinational we already know about that, and sequential means combination plus memory part. Okay, and this memory unit consists of flip-flop. Okay, so this particular module number 3 cover memory unit, properties of latch, actually minor difference between latch and flip-flop. Okay, I have discussed later, and types of flip-flop, JK, SR, D, T, and application of flip-flop. Two main application of flip-flop, it is the register and counter. If you consider a 7-bit register, so this 7-bit register actually consists of 7 numbers of flip-flop, because flip-flop store only 1 bit of information, so every bit having the flip-flop. So 7-bit register means consists of 7 numbers of flip-flop. So it is a one type of application of flip-flop. So shift register or any register, it is the application of flip-flop. Same if you consider the counter. So काउंटर क्या करेगा, जैसे मैंने बोला है कि मुझे 0 to 10 काउंट करना है, तो वो कितना काउंट करेगा, अप टू 0 to 10. ठीक है ना, अगर मुझे 0 to 10 काउंट करना है, सो लाइक अगर आपने 4 बिट ली है तो 2⁴ मीन 16, तो मैं कितना काउंट कर सकती हूँ उसमें, 16. सो फॉर 16 1 to 16 अगर मुझे काउंट करना है तो मुझे 4 बिट का काउंटर लेना है, and every bit it is nothing but flip-flop. So अगर आपको application of flip-flop पूछे, then it is a register and counter. Okay, first of all sequential circuit किससे बना है, वो combination plus flip-flop से, because flip-flop क्या है, it is a memory unit with store a 1 bit of information, either 0 or 1. Okay, and flip-flop के भी types है, 4 types है, SR, JK, D, T. Okay, and after the types of flip-flop we have to cover the application of flip-flop, it is the register and counter. तो ये पूरा चैप्टर आपका इसमें आ गया, what is sequential circuit, what is flip-flop, types of flip-flop, application of flip-flop, register and counter. Okay, and this sequential circuit also divided into 2 categories, it is synchronous and asynchronous. Synchronous and asynchronous का मीनिंग सिंपली उतना ही है, इफ वी आर गिविंग एनी क्लॉक पल्स, ओके, अब क्लॉक पल्स क्या है वो बाद में बताऊंगा, अगर हम क्लॉक पल्स आपकी फ्लिप-फ्लॉप में दे रहे हैं देन इट इज सिंक्रोनियस, एंड इफ इट इज ए विदाउट क्लॉक पल्स सो इट इज कॉल्ड एज ए असिंक्रोनियस सीक्वेंशियल सर्किट. टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे, वैसे मैंने आपको जो बताया वही है, फ्लिप-फ्लॉप्स, एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप-फ्लॉप, shift register, 2 types of counter, asynchronous and synchronous, and sequential counter. So topics to be covered in this particular chapter. First of all, what is sequential circuit? The sequential switching circuit are circuits whose output levels at any instant of time are depend on the level present at the input at that time, and वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको जो बोला है ना एंड, वहीं से सीक्वेंशियल का पार्ट स्टार्ट होता है, और किस पे डिपेंड है वो ऑन द स्टेट ऑफ द सर्किट, मीन्स क्या है उसका, ऑन द पास्ट इनपुट और ऑन द प्रायर इनपुट लेवल कंडीशन.
मीन्स वो पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट दोनों इनपुट पे क्या रहेगा, वो डिपेंड रहेगा, बिकॉज उसका जो आउटपुट है वो एज ए फीडबैक मुझे कहाँ पे देना है, इनपुट। तो ऑफकोर्स आफ्टरवर्ड जो आउटपुट जनरेट होगा इट इज डिपेंड अपॉन प्रीवियस इनपुट एज वेल एज present input in sequential circuit. Okay, so past history is provided by feedback from the output back to the input, made up of combinational circuit and memory unit. Sequential किससे बना है, combinational part plus memory part, and this memory part it is nothing but flip flop FF. Okay, and application क्या है, counter, register and serial adder something. serial adder में अगर आपको पता है तो हमने सिर्फ रजिस्टर का यूज किया हुआ था फॉर एडिशन के लिए इन यूनिट नंबर 2. ओके, इट इज सिंपल डायग्राम जिसके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंशियल, व्हाट इज लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट. जैसे ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे उसका आउटपुट आया, बट आउटपुट मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली लेना नहीं है, मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे स्टोर करना है फ्लिप फ्लॉप में, और वो आउटपुट मुझे कहाँ पे देना है, जब मैं सेकंड इनपुट दे रही हूँ तब ये आउटपुट भी मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है. मीन्स योर नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस इनपुट, कि प्रीवियस इनपुट उसका क्या था जिसकी वजह से यहाँ पे ये आउटपुट आया, जिसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, अगेन इनपुट सर्किट पे होगा. सो दिस पर्टिकुलर आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस output, or you can say a previous state of your circuit also. Okay, so it is a sequential circuit, depend upon present as well as previous input, and this previous input state given by the feedback to again back to the combinational part. It is called as a sequential circuit. डिफरेंस दिया है आपको, जो मैंने आपको बताया वही डिफरेंस में लिखा हुआ है, नथिंग मोर. Like sequential circuit. So in sequential circuit, the output variables at any instant of time are depend on present input variable and on the present state. Okay, on the past history of the system. And history को store करने के लिए क्या चाहिए? Of course memory. और वो memory क्या है? Flip flop. Okay, and combinational circuit में तो ऐसा कोई problem है ही नहीं. The output variable at any instant of time only depend upon present input variable. Okay, so of course sequential में memory unit होगा and combinational में नहीं होगा. So second difference क्या है? Memory unit is required to store a past history of input variable in a sequential circuit, and combinational circuits are faster because, sorry, यहाँ पे memory unit is not required in combinational circuit. ओके, इसमें मेमोरी यूनिट की रिक्वायरमेंट है और इसमें नहीं है. ऑफ कोर्स जिसमें कुछ ऐड हुआ होगा वो ऑफ कोर्स स्लोअर भी होगा स्पीड में, एंड उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ज्यादा होगी. सीक्वेंशियल सर्किट में सिर्फ कॉम्बिनेशनल नहीं है, उसमें मैंने क्या ऐड किया, फ्लिप फ्लॉप. दैट्स व्हाई कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल ये सर्किट क्या हो जाएगी, स्लोअर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी इन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू. सो थर्ड डिफरेंस, sequential circuit are slower than combinational circuit, and third point, in combinational circuits are faster because delay between input and output is due to only propagation delay of gates. Okay, इसमें मेमोरी FF है ही नहीं, मतलब कि propagation delay मुझे सिर्फ कहाँ पे मिलेगा कि गेट्स के जो इनपुट टू आउटपुट तक आपको पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है, इट इज द डिले बिटवीन only because of the propagation delay of gates, but इसमें flip flop भी cover होगा. That's why ये slower है, ये faster होगी. Okay, what is propagation delay? Define. किसको आता है बोलिए, what is propagation delay? Time required to propagate signal from input to output. And of course combinational portion किससे बना है, numbers of gates से. So propagation delay भी किसका होगा, only because of gates. But sequential circuit में FF भी present है, ठीक है, तो उसका जो डिले है वो ज्यादा होगा, मतलब सर्किट आपकी स्लोअर हो जाएगी.
सेम फॉर अगर मैंने कुछ ऐड किया है तो ऑफ कोर्स उसकी डिजाइन क्या होगी, हार्डर हो जाएगी. सो योर डिफरेंस 4. Sequential circuits are comparatively harder to design and combinational circuits are easy to design. Okay, so these are the main differences. Okay, now what is flip-flop? Flip-flop, it is also called as a bistable multi-vibrator also. Why bistable? Because उसके दो स्टेट होंगे, either 0 और 1. Because having two stable state. कौन से two stable state है कि वो only one bit information स्टोर करता है flip-flop. तो either वो bit की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1. So this flip-flop having only two stable state. That's why it is a bistable multi-vibrator. It can remain in either of state indefinitely. मतलब डिपेंड आप कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, उस कंडीशन के थ्रू वो पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा. Its state can be changed by applying the proper triggering signal, and this triggering it is nothing but clock pulse. अगर आपकी फ्लिप फ्लॉप को आपने क्लॉक पल्स और वैसे कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपल 0 to 1. एक सर्किट को मैं क्लॉक दे रही हूँ 0 to 1, वो एक्टिव होगा तभी जो इनपुट है उसके थ्रू इनपुट पर्टिकुलर इनपुट है वो सर्किट में पास होगा फ्लिप फ्लॉप में और आपको आउटपुट मिलेगा. जब तक आप क्लॉक पल्स के लिए अप्लाई नहीं करते, मतलब क्लॉक पल्स नहीं देते हैं, फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा. इट इज ओनली अनेबल व्हेन वी आर गिविंग द क्लॉक पल्स. इफ इट इज ए सिंक्रोनस मतलब फ्लिप फ्लॉप, सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन क्लॉक पल्स, दैट्स व्हाई. Okay, so it depend upon clock pulse. Now main two difference between latch and flip flop. It is a very confusing two words, flip flop and latch. So if you consider flip flop, so flip flop always required clock pulse. वो आप एक चीज याद रख लीजिए, flip flop को always clock pulse चाहिए and latch does not require any clock pulse. वो मेन डिफरेंस है. लेच को कोई भी क्लॉक पल्स नहीं चाहिए टू ऑपरेट, बट फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्स द क्लॉक पल्स. सो यहाँ पे एक सिंपली आपको यहाँ पे बोला एक एसआर फ्लिप फ्लॉप, बट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लेच. सो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इट इज कॉल्ड एज ए लेच. व्हाई इट इज सिंपलेस्ट? बिकॉज इसमें कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया है. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर लेच यू कैन डिजाइन by using two cross coupled NAND gate as well as two cross coupled NOR gate. आप either NAND gate से भी बना सकते हैं और NOR gate से भी बना सकते हैं. ठीक है, ओके. फर्स्ट आपको SR दिया हुआ, फर्स्ट जो पोर्शन आपको दिया रहा है, फर्स्ट पोर्शन इट कंसिस्ट ऑफ NOR गेट एंड सेकंड लेच कंसिस्ट ऑफ NAND गेट. अभी यहाँ पे मैंने कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया है. आई जस्ट गिवन टू लाइक इनपुट. इट इज ए रीसेट. R मीन्स रीसेट होगा एंड S मीन्स क्या होगा, सेट. मतलब S जैसे ही 1 होगा आपकी फ्लिप फ्लॉप कौन से मोड में चले जाएगी, सेट मोड में. एंड जैसे ही आपका रीसेट है वो क्या हो जाएगा, 1. तो आपकी फ्लिप फ्लॉप कौन से मोड में चले जाएगी, रीसेट मोड में चली जाएगी. ठीक है, सो दिस आर द टू इनपुट्स R and S. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मैं देखो 0 to 1 क्लॉक पल्स दे रही हूँ इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ NOR गेट, एंड यहाँ पे मैं 1 to 0 क्लॉक पल्स दूंगी इफ इट इज ए NAND गेट. ठीक है, नॉर्मली आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप ही पूछते हैं, बट अंडरस्टैंड के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि ये टेबल कहाँ से जनरेट हुआ, दैट्स व्हाई. ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे 0 0 रखना है. Q वो मेरा नॉर्मल स्टेट है एंड Q का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, Q डेज, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट वाला स्टेट है. तो ऑफ कोर्स Q एंड Q डेज क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए या डिफरेंट, कौन मुझे बताएगा. चलो, डिफरेंट. ऑफ कोर्स Q में अगर मैं 0 देती हूँ तो Q डेज मुझे 1 ही मिलना चाहिए. अगर वो दोनों सेम आ रहे मीन्स इट इज ए प्रॉब्लम. ओके, तो फर्स्ट इज जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे 0 0 है. ठीक है, और इनपुट कंडीशन क्या दी है, 1 and 0. ओके, सो यहाँ पे मैं 1 दूंगी, सॉरी यहाँ पे S क्या दिया है, 1, और ये R. एक्चुअली ये है ना, आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना कि ये ड्रॉ कर देना.
ठीक है। उसके बाद इनिशियली इन दोनों को 0 रखना है, Q एंड Q डैश को, ठीक है। या फिर अगर आप लाइक Q को 0 ले रहे हैं तो इसको क्या कर देना है, 1 कर देना, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम नहीं हो सकते, दैट्स वाई। इसको 0 ले लो तो इसको 1 ले लो, चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली 0 एंड 1 मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और इनपुट क्या दिया मैंने, 1 एंड 0, तो यहाँ पे मैंने 1 दिया, तो यहाँ से क्या आ रहा था 0, तो 0 प्लस 1 1, उसका डैश 1 का डैश मतलब क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये Q डैश क्या मिला मुझे 0, देखो यहाँ पे 0 है, वो 0 मुझे कहाँ पे देना है, यहाँ मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। ये मेरा R भी 0 था, 0 प्लस 0 उसका डैश मीन्स 1, तो मुझे मिल गया 1 0, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको फर्स्ट आप क्या एज्यूम कर लेना 0, Q को ही सिर्फ 0 एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो 0 एज्यूम करना है और SR की जो वैल्यू दी है वो आपको देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो आएगा 0 0, उसमें तो आपके पास ऑलरेडी Q एंड Q डैश की वैल्यू है ही, तो कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है और आप लास्ट तक जा सकते हैं। ये पूरा टेबल आप इस तरह से पास होके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नोटबुक में ट्राई करना, इनिशियली इसको 0 ले लेना है, उसके बाद ये सारे इनपुट्स देने हैं और Q एंड Q डैश की वैल्यू क्या आ रही है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो इट इज वेरी इजी, बट इसमें भी आपको हर बार ऐसा नहीं करना। आपको फ्लिप फ्लॉप दी है तो आप टेबल ड्रॉ करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं, वो टेबल आपको याद रखना है। वो कैसे याद रखना है वो बाद में बताती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, SR की वैल्यू अगर मैं 1 1 दे रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 0, तो वो पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। आगे Q क्या दिया हुआ था, इसकी वैल्यू क्या दी है 0, ठीक है। तो 0 यहाँ पे गया, इसकी वैल्यू 1 दी है, तो 1 प्लस 0 तो 1, 1 का डैश मीन 0, तो Q डैश क्या मिला 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा। नाउ Q डैश इज 0 बट R इज अगेन 1, क्योंकि दोनों 1 1 है, दैट्स वाई। तो 1 प्लस 0 1, उसका डैश मीन 0, तो ये दोनों 0 0 आ चुके हैं, Q एंड Q डैश, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक नॉर्मल वैल्यू है, दूसरी कौन सी है कॉम्प्लीमेंट। सो दिस कंडीशन व्हेन 2 इनपुट्स of SR latch or flip flop are 1 1, then this particular condition of SR flip flop, it is called as a rest condition. आपको पूछ सकते हैं what is rest condition in SR flip flop? So when 2 inputs of SR is given like 1 1, so we can find the same value of Q and Q dash, which is not possible. It is called as a rest condition, ठीक है। ये पूरा टेबल यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने किससे किया है, नैन गेट से किया होगा, ठीक है। नैन गेट्स में भी आपको पूरा टेबल मिल जाएगा, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली लैच है और आपको दिखाया गया है कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है, और इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप थ्रू मैं ये टेबल कैसे डिराइव कर सकती हूँ वो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिया। अदरवाइज इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये टेबल है वो डायरेक्टली हमें याद रखना है। व्हेन GTU आस्क like draw the SR flip flop, its table and its diagram, तो टेबल आपको याद रखना है, ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, SR latch with controlled input, okay, it is not a like simple input but it is a controlled input, and controlled input का meaning आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि it is a clock pulse. So now your SR latch becomes फ्लिप फ्लॉप, ओके। अब तक वो क्या था, लैच है यहाँ तक। इफ वी आर गिविंग द एनी क्लॉक पल्स और कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल इट इज नथिंग बट क्लॉक पल्स ही है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लॉक पल्स दे रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इट इज बिकम्स द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फर्स्ट मैंने 0 दिया, क्लॉक पल्स एक्टिव नहीं है, उसके बाद सारी वैल्यू के लिए क्लॉक पल्स क्या एक्टिव है, क्लॉक पल्स एक्टिव है मतलब मेरा SR फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। इसमें देखो SR फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डोंट केयर लिखा है, और उसका नेक्स्ट स्टेट मतलब Q, वो क्या होगा, नो चेंज। क्यों नो चेंज, बिकॉज SR फ्लिप फ्लॉप आपकी अनेबल ही नहीं हुई है। व्हेन वी आर गिवन 1 तो फ्लिप फ्लॉप अनेबल होगी। आपको ये 4 स्टेट याद रखने हैं, बहुत इजी है बट याद रखना है। 0 0 का मीनिंग क्या है, वैसे आपको पता भी चल जाए, 0 0 मतलब क्या होगा, नो चेंज। 0 0 है अगर आपका SNR, तो कोई भी इनपुट में नहीं दे रही, मतलब क्लॉक पल्स क्या है मेरा अभी डाउन है, लो है, सो देयर इज अ नो चेंज। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद
01 में देती हूँ तो यहाँ पे देखो 01 में R1 है, R का 1 का मीनिंग क्या है? इट इज ए रीसेट। R1 है मतलब रीसेट है, तो रीसेट का मतलब क्या होता है? अगेन उसको रीसेट करेगा तो आपका Q 0 हो जाएगा। फिर अगर S की वैल्यू 1 है तो सेट हो जाएगा मीन्स Q की वैल्यू 1 एंड 1 के लिए क्या आएगा? व्हेन टू इनपुट S एंड R बोथ आर 1 सो इट इज कॉल्ड एज ए रेस्ट कंडीशन एंड हियर यू कैन राइट इनडिटरमिनेट, आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, और इनवैलिड यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इट इज इनवैलिड बिकॉज बोथ इनपुट्स आर 1 अगर दोनों 1 है तो मुझे Q एंड Q डेज क्या मिल रहा है? सेम, दैट्स व्हाई इट इज ए अनडिटरमिनेट। तो आपको 4 स्टेट ही याद रखने हैं। कौन से? 0 मीन्स नो चेंज, 01 मीन्स 0, 10 मीन्स 1 and 11 means invalid or indeterminate. Okay, any doubt up to this point? SR flip-flop? Hello. No, ma'am. Okay. Okay, so it is a SR flip-flop. Same. ये इसका फिगर है, ये उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप बोल सकते हैं। ये मैंने मोरिस मेनू का स्नैपशॉट लिया हुआ जिसमें एक ही फिगर में सब आ जाता है। अगर आपको बोला है तो आपको सिंपल ये 4 ही ड्रॉ करनी है अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा है 7 मार्क्स के लिए सो आप उसके वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप SR की कोई भी वैल्यू लेके Q एंड Q डैश फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट तो याद ही रखनी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, SR की। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है? प्रीवियस, सिंपली आपको दिखाया गया है कि ये प्रीवियस क्या है? आउटपुट, एंड Q ऑफ t प्लस 1 क्या है? नेक्स्ट आउटपुट। सो इट इज ए Q एंड Q ऑफ t प्लस 1। यहाँ पे 4 वैल्यू के लिए मैंने 0 रखा है, 4 वैल्यू के लिए 1 रखा हुआ है। नाउ देखो SR की 4 ही कंडीशन है जो आगे मैंने बताई थी। कौन कौन सी है 4 कंडीशन? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। So we can write here 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Now for next output, previous output, we can again repeat 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Now आपको आउटपुट लिखने हैं। आपको पता है ये 0 0 मीन्स क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज का मीनिंग क्या है? वो आपको पता है? नो चेंज का मतलब 0 नहीं है, मतलब नो चेंज का मीनिंग है कि मेरा नेक्स्ट आउटपुट इट इज सेम एज प्रीवियस आउटपुट। ये आपको जो दिया है ना वो प्रीवियस आउटपुट दिया हुआ है। You can take a 1 also here. ये assumption है एक 0 and 1 का। Okay, so no change का meaning है कि Q of t plus 1 is equal to क्या है? Q. Now next 0 1 तो आपको पता ही है 0 1 0 means 1 1 1 so it is a indeterminate. Again 0 0 तो no change। देखो no change का मतलब क्या है? In this case Q of t plus 1 and Q both are same. So Q of t plus 1 क्या है? 1 एंड Q भी Q क्या था आपका? 1। सो Q ऑफ t प्लस 1 भी क्या आएगा? 1। अगर वो 0 होता तो 0 लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है। 0 1 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1 एंड 1 1 मीन्स अगेन इनवैलिड। ओके, नाउ यहाँ पे केमेप ड्रॉ किया हुआ है। देखो क्या लिया है? मेरे 3 इनपुट्स है और ये एक आउटपुट है। सो कंसिडर दिस आर द 3 वेरिएबल्स Q S एंड R। सो 8 स्क्वायर का लाइक केमेप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने SR की सारी कंडीशन लिख दी है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 और Q की वैल्यू यहाँ पे रखी है 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनडिटरमिनेट है ना, उसकी जगह पे क्या लिखना है? X लिखना है। ओके, वी डोंट केयर अबाउट दैट। उसकी SR की वैल्यू कुछ भी हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज उसका जो स्टेट मिल रहा है वो क्या है? इनडिटरमिनेट है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? X एंड X। ठीक है, सो कितने 1 है? 1 2 3। तो यहाँ पे देखो 3 1 मैंने प्लेस किए। ठीक है, कैसे प्लेस करना है केमेप में वो सबको आता है आई थिंक। ठीक है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए लाइक 0 1 0 के लिए Q ऑफ t प्लस 1 की वैल्यू क्या है? 1, तो 0 एंड 1 0 तो यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, सेम फॉर इनडिटरमिनेट है, उन दोनों जगह पे X लिखना है। ठीक है, तो ये केमेप होगा 4 का x स्क्वायर बनेगा और एक 2 का बनेगा। इफ यू फाइंड रिजल्ट सो यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन S plus R dash Q. It is a very important. It is your characteristic diagram, characteristic table. It is a characteristic equation. S plus R dash Q
इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आपको कोई भी कभी भी पूछे, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए फ्लिप फ्लॉप की एस प्लस आर डेस क्यू, एंड इट इज सिंपली सिंबल। क्यू एंड क्यू डेस मेरा आउटपुट्स है, एस एन आर इनपुट्स है, और दूसरा क्या दे रही हूँ मैं एक्सटर्नली ट्रिगरिंग के लिए क्लॉक पल्स दे रही हूँ। ठीक है, क्लॉक पल्स यहाँ पे देखो आपको इस तरह का दिखाया हुआ है, पॉजिटिव 0 to 1। मतलब आपकी फ्लिप फ्लॉप कैसी है कि जब मैं 0 to 1 डिजिट दे रही हूँ, मतलब क्लॉक पल्स दे रही हूँ, तो वो एक्टिव हो रहा है। अगर ये डाउन होता, उल्टा होता क्लॉक पल्स, तो जब मैं 1 to 0 करती तब मेरा फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एक्टिव होता। ठीक है, एनी डाउट इन दिस एसआर फ्लिप फ्लॉप? अदरवाइज we just stop here, and remaining portion we will cover in our next lecture tomorrow. Any doubt in this up to this point? Sequential circuit, combinational circuit, what is flip flop, what is latch? Hello, any doubt? हाँ बोलो. Okay, no. Anyone else? Okay, so I just take the attendance, and please बाकी आपके सारे फ्रेंड्स को बोलिए कि प्रेजेंट रहे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप अभी मैं आपको 3 o'clock तक करवाने ही वाली थी, क्योंकि अगर मैं 3 o'clock तक करवाती हूँ तो सारी फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट हो जाएगी। एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट लाइक इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसका यूज आपको आगे भी होगा, बिकॉज अवर सिस्टम, योर कंप्यूटर सिस्टम इज कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, दैट्स व्हाई। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी यूज होगा, क्योंकि आपका ये डिजिटल फंडामेंटल है, उसका नेक्स्ट वर्जन होगा, इट इज ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन COA। ठीक है, तो ये बेसिक है, उसके बाद आप वो स्टडी कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक्स, बट ये आपके कंप्यूटर का ही सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई मैं आप सारी जो है वो नहीं करवा रही हूँ, एक ही मैंने करवाया है SR फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि सारे प्रेजेंट नहीं है एंड ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। एंड सेम उसका प्रैक्टिकल है फ्लिप फ्लॉप का, वो मैं नेक्स्ट लेबोरेटरी में करवाऊंगी। ठीक है, okay, please write your number in chat box.